काफ़ी इमोशनल और इंटरेस्टिंग था ये सेगमेंट, और काफ़ी दफ़ा तो मैं भी इमोशनल हुई और मैंने देखा आप भी इमोशनल हुई। अम्मी नहीं यार, सारा बात नहीं, सारी हमारी अम्मी यार पर। जी तो रफत, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट क्या है? हमारा नेक्स्ट सेगमेंट ये है कि हमारे काफ़ी मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी एफर्ट की है और अपना कॉन्फिडेंस लेवल इतना बिल्डअप किया है जेम्स के थ्रू और अपनी तकरीरों से अपने आप को निभाया है। तो वही तकरीरें सुनाएंगे हम लोगों को, और इसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगी मिस्टर सलमान शेख को। The name of my today's topic is Our nation is still unprepared for a disaster, and I'm in against of it. Unprepared. The odd proximity of this word has stunned me as I prepared myself to express on it. I have an urge to ask you, am I not standing before you all to discuss or to throw an analytical eye on the disasters hovering over our heads, ready to attack in the near future? Am I not discussing? Am I not pondering? Am I not tickling your imaginations? And am I not debating on it? Respectable chief guests, teachers, and my dear fellows, today the topic that we are discussing is amazing. It's an ideology of great minds, and I feel myself lucky to have this opportunity here to divert your attention towards this topic. Mr. President, preparing for a disaster is not a child's play. It has always been an identification of great nations. Today, each and every single person present here is discussing disasters. Disasters that are past and all those which will come sooner or later. Wow, great. We are preparing for the disasters that we have not even seen, and some of our friends are still saying we are unprepared. Were we really unprepared at the time of our existence when the young girl who stood up at the roof of Islamia College flew the Pakistani flag? Wasn't she ready? The world saw when the blood was raining in Hyderabad, even a 12-year-old boy was standing in a line to serve his blood for the nation. Wasn't he prepared? Today, we are preparing ourselves for a disaster. And I salute the people who have selected this topic, because the ability to know future and to prepare for it in the past is the dignity of sophisticated people. I was really astonished when I heard my friends speaking and convincing us about our nation not being prepared, as they were showing only one side of the picture. But it's an anonymous saying that a wise man hears one word and understands two. So struggling is not a fallacy or an unprepared conviction, but it is a theme for those who have the power of faith and the glimpse into the future as a nation always does. We stand with our heads high for the institutes of forces like Army, Navy, Air Force, nursing institutes, colleges and universities, teaching, training and preparing to retaliate against any horrendous threatening forecast. I want to skim out all the facts overcome by our nation. The earthquake that hit 5 years back, the flood that affected 80% of our country, the time-by-time disasters since our existence, and even the current disasters which we are living with shows us the real truth. If a nation is still unprepared, then how after crossing through all these disasters, a nation has made a remarkable mark over the world's globe? Mr. President, we are even ready for the psychological disasters which are imposed on us in the shames of religion, politics, and international conspiracies. Then how these ground disasters can degrade and demoralize us. We have always coped up with these disasters on our basis. No leader, no politician, no international hand has stretched us out of these deadly disasters that we have faced in recent times. It was a complete nation's courage. And I cannot deny the number of unexposed national heroes who were individually helping the victims and devoted their lives for the nation. Mr. President,
how we Muslims, we can deny the preparation for the disasters, as they have already told in the divine and holy book Quran. Surah Al-Qari'ah, Surah Tawbah, Surah Bani Israel explains the disasters and have already prepared us for them. We are prepared, sir. We are prepared. And if anyone agrees with this title, then he is actually refusing his own existence, his nation, and above all, the commandments of Allah subhanahu wa ta'ala. Thank you. अरे कहाँ जा रही है? एक तो मुझे इनकी समझ नहीं आती। क्या काम कर रही है वहाँ पे आप? मेरी अम्मी है। एक मिनट, नहीं मैं किसी की अम्मी के पास नहीं आई हूँ। ये मेरी अम्मी है। एक मिनट मुझे ढूंढने दो। पता नहीं मुझे ढूंढनी है। तुम्हें क्या? लाइट तो आ रही है। भाई मैं यहाँ पे कंपेयरिंग करनी है, क्या हो गया है? हाँ तो करो, मैंने मना नहीं किया। तो मैं अकेले कैसे करूँगी? ये तारीख अजीज शो है। अच्छा, तो हमारी नेक्स्ट मेंबर को ढूंढने मिल गया। इनके बहुत सारे एफर्ट्स हैं और इनकी भी काफ़ी स्पीचेस हैं और आज ये हमारे साथ खेलेंगे। The topic was गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। तारीख़े आलम से गोशो होश और बसारत मय बसीरत से हम कलाम हुआ जाए तो एक सदा की बाज़गश्त शऊर के पर्दे दबीस से टकराएगी कि मैं रब्बे आला हूँ। जी हाँ सदर मकार, ये वो आवाज़ है जिसके हर लफ्ज़ से गुरूर और निफ़त, तकब्बुर और बड़ाई, नाज और घमंड टपकता हुआ महसूस होता है। ये दावा मिस्र के वालिए बेनानो हुदूद फरामोश फिरौन का है, उसे इस ताकत के नशे में चूर करने और इक़्तिदार के सुरूर का जामे मस्त पिलाने वाला हामान है जो मजहबी पेशवाइयत का सफ़ील और सरदार है, लेकिन अपने आप को खुदा समझने वाला ये ज़रा बेनिशान और हकीर हैवान बलिबास इंसान बनी इसराइल की गुलामाना सिफत की वजह से हिम्मत दही और गुस्ताखी के उरूज पर पहुंचा। और आज वही गुलामाना सिफत मुझे मौजू से मुखालफत करने वालों के दलाइल में फ़रोग़ पाती नज़र आ रही हैं और सदा इक़बाल मेरे कानों में गूंज रही है कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। ठोकर अगर लगी है तो जुल्मत का क्या गिला, हमसे चरा फेरा संभाले कहाँ गए। जनाबे वाला, आज इस ऐवान में ज़ेर बहस मौजू की मुखालफत में दलाइल देने वाले मुकर्ररीन ज़मीर को तब्दील कर देने वाली गुलामी के मुकाबले आज़ादी ख्याल और आज़ादी इत्लाक़ और आज़ादी ख्याल को बतौर दलील पेश कर रहे हैं। तो दर हकीकत ये दलील लो आप अपने दाम में सयाद आज्ञा की सूरत इख्तियार कर जाती है कि खुद को गुलाम ही नहीं मान रहे तो ज़मीर की तब्दीली का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। आज़ादी ख्याल की दलील देने वाले सितारों के हुजूम पर एक नज़र खुर्शीद डालने की जसारत करूँगी कि मतला साफ हो जाए। जनाब वाला, मीडिया की बेलगामी को अगर आज़ादी ख्याल के मफ़ाहिम से ताबीर किया जाए तो क्या मज़े का खैर सूरत हाल पैदा होगी। बम धमाके के बाद हर नज़र को खबर बनाने की कोशिश में एक रिपोर्टर जख्मी के पास जाता है और सवाल करता है कि जब बम ज़मीन पर गिरा तो क्या हुआ, और जख्मी का जवाब ये कि वो मरीन तब वो मेरे पास आया और बोला भाऊ यकीनन इससे बेहतर आज़ादी ख्याल और क्या हो सकता है दलीलें तेरे खिलाफ मगर सोचती हूँ तेरी हिमायत में। जनाबे वाला, गुलामी के तौक़ की बढ़ती हुई तंगी और सख्ती को इक़बाल भी महसूस करते हुए लामहदूद फ़िक्र का तर्जुमान होता है। इक़बाल का ख्वाब महज़ खत्ते की आज़ादी का ख्वाब नहीं बल्कि फ़िक्र की आज़ादी का ख्वाब है, शऊर की बेदारी का ख्वाब है, गुफ्तार से हुदूद को मिटाने का ख्वाब है, नाम निहाल मजहबी पाबंदियों के कफ़स को तोड़ने का ख्वाब है। वो ख्वाब देखता है क्योंकि वो गुलामी में कौमों के बदलते हुए ज़मीर देख रहा है, वो मसाले की तक़सीम देख रहा है, वो मसाजिद की तफरीक देख रहा है, वो तबक़ात के दर्जात देख रहा है और अब तो अपने शहर के चौराहे पर इंसानियत की तज़लील भी देख रहा है। इसी खुदा में है अब तरके जहाँ की तालीम जिसने मोमिन को बनाया महू परवी का अमीर। तनबा तकदीर है आज जिनके अमल का अंदाज़ थी नेहा जिनके इरादों में खुदा की तकदीर था जो ना हो बतदरीज वही खूब हुआ
कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। जनाब आइए तारीख के और आप पर नज़र डालिए और इस कौम का बदलता हुआ ज़मीर देखिए। आपने देखा था अपने बुजुर्गों की आंखों से पाकिस्तान का ख्वाब और आप देखते हैं आज इसी वतन की कशकोल हकीकत। आपने देखा था इस्लामिया कॉलेज की छत पर पाकिस्तान का झंडा लहराने वाली तहरीक पाकिस्तान की उस बहादुर कारकुन को और आप देखते हैं आज कमसिन बच्चियों को हवस का निशाना बनते हुए। आपने देखा था हिंदुस्तान के मुसलमानों का इत्तेहाद और आप देखते हैं आज मुसलमान के हाथों जलता हुआ मुसलमान। आपने देखा था उस ग्रोह को जो पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह के नारों से दिलों को गरमा रहा था और आज आप देखते हैं उसी कलमे के नाम पर खुदकुश हमलावरों को। बराए नाम से देखती तो मैं भी, मैं देखती हूँ रहनुमाओं की बेहिसी, मजलूमों की बेकसी, मैं देखती हूँ इख्तियारात का प्रचार, कर्जों का हिसाब, मैं देखती हूँ मुआशरती खराफात, जात पात के इंतजार, मैं देखती हूँ बेहतर रिजाल, अखलाकियात का काल, मैं देखती हूँ ये बेअमल शरीयत और गुलामी में मुतबद्दिल ज़मीर की हकीकत। बराए नाम से देखती तो मैं भी हूँ कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का ज़मीर। अजब है आपने हम पर उठाए हैं पत्थर, अगरचे आप भी शीशे के घर में रहते हैं। ये कौन सोचे कि कान है क्यों ये तारीकी, सभी यहाँ तो फरेब सहर में रहते हैं।